میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبق پیارے وہی کرتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ میں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ پرخلوص دعوت دیتا ہوں کہ حضرت اپنے حکیم کی باتوں سے مستفیض کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک تکلیف اور زحمت دینا چاہ رہا ہوں۔ ویسے بھی بہت سارے لوگ بہت دور سے سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی آپ کو زحمت دینے کی گزارش کرتا ہوں۔ اور حضرت کے بیان سے پہلے حضرت کا طریقہ انداز یہ ہے کہ جتنے لوگ سامنے جڑ کر بیٹھتے ہیں تو حضرت کے بولنے میں اتنا مزہ آ جاتا ہے۔ آپ لوگ دور بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں، ایسا دکھ رہا کہ کشمیر میں بیٹھے اور کنیا کماری میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنی کرسی نظر آ جائیں، اس لیے کہ جو بیٹھے ہوئے کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، ہم چھوڑانا کاری کے لیے چھوٹ رہے ہیں، اس لیے کرسی کی بہت قیمت ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس لیے گزارش ہے کہ کرسیوں کے ساتھ سب جلدی جلدی آگے ہو جائے تاکہ حضرت کا بیان شروع ہو جائے۔ آگے جو جتنے لوگ پیچھے ہیں ان سب سے گزارش ہے، اور مائک سیٹنگ والے سے گزارش ہے کہ ذرا مائک کو سدھار دیں، آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ تمام ساتھیوں جتنے بھی کرسیوں پیچھے ہیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ آگے آ جائے، اور بچوں سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں، آخر بیان تک کوئی بھی بات نہ کریں، اپنے اپنے دوستوں کے گروپ میں اسٹاف کو لگا لیں کہ کوئی بات نہ کریں، انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ مجھے مائک برابر نہیں، ذرا درست کر دیا پوچھا نہیں۔ یہ بھی رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال عز وجل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے؟ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے؟ یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام
مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. میں سمجھ رہا تھا زبردست سردی ہے اور کھلے میدانوں میں سردی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. بچے ذرا خاموش ہو بیٹے, یہ تو ان کو اٹھا کر بھیج بھی سکتے ہیں پیچھے. کھلے میدانوں میں سردی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. میرے حال سردی کا موسم ہے, سیزن ہے. میں یہی سمجھ رہا تھا سردی کا اثر سننے والوں پر پڑ رہا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ سردی کا اثر سننے والوں پر پڑ رہا ہے. اسی لیے کوئی گرم بنین میں بیٹھا ہے, کوئی گرم ٹوپی میں بیٹھا ہے, کوئی واسکوٹ میں بیٹھا ہے. لیکن آپ کے جلسے کو آ کر پتا چلا کہ سردی کا اثر مائک پر بھی پڑا ہے. ہمارا جو مذہب ہے نا, مذہب اسلام ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارا مذہب سچا مذہب ہے. ہمارا مذہب صحیح مذہب ہے. ہمارا مذہب پیارا مذہب ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مانتے ہیں. کچھ لوگ نہیں مانتے, ان پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے. شادی زبردستی نہیں کر سکتے بولے تو مذہب زبردستی اختیار کر سکتے. کام اچھا ہو کہ برا ہو, بیچ میں مرضی کا سودا ہو, زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا. اچھا, میں بھی انسانی چے آسمان سے اتریا سو فرشتہ نہیں, مسلسل سفر ہی میں چل رہا ہوں, صبح شام الحمدللہ. اور ایک ایک دن کو 3-4 گھنٹے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ ہم بیکار کے باتاں کر کو 24 گھنٹے غارت کر رہے ہیں. ایسے وقت اللہ تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو دین کی بات کرنے کا موقع دے رہا ہے. اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیبی کی بات اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے حال 3-4 گھنٹے تو بات کر رہا ہوں روزانہ, 3-4 مرتبہ کھا بھی رہا ہوں. اب لمبا بیان نہیں کروں گا, آگے سفر حیدرآباد کو جانا ہے. صرف ایک 3-4 گھنٹے بول کر ختم کر ڈالتا ہوں. کیا حضرت اس کے لیے بھی تیار ہے ہمارا. چہرے دیکھے تو پتا چل رہا ہے 3-4 گھنٹے نہیں. سب کی نگاہیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت یہاں فجر پڑا کو جاؤ. سبحان اللہ. مولوی صاحب بہت ہوشیار, خالی کتاباں نہیں پڑھتے, چہرے بھی پڑھ لیتے. الحمدللہ. اسی لیے ساری دنیا ڈاکٹروں سے نہیں ڈرتی, لائروں سے نہیں ڈرتی, انجینئروں سے نہیں ڈرتی, گھگواں سے نہیں ڈرتی, الوؤں سے نہیں ڈرتی. اگر ڈرتی ہے تو محمد کی امت میں وارثین انبیاء سے ڈرتی ہے. ابھی حضرت مولانا وندے ماترم کے بارے میں بول کر گئے نہیں,
खुदा की कसम मुल्क में अगर उलमा ना होते तो कब की ये बिल पास हो जाती। सही बात, सही बात। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उलमा के लिए दुआ करते रहो। अगर किसी को जिंदगी देना मुमकिन होता तो फिर आपके लिए ये फर्ज भी बन जाता, वक्त जरूरत आप अपनी जिंदगियां उलमा को देकर ईमान बचाने की कोशिश करें। सारी दुनिया के अंदर जब भी कोई फितना उठता है तो उस फितने के सामने मूसा बनकर कोई नजर आता है तो वो हुजूर की उम्मत का आलिम नजर आता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वंदे मातरम के बारे में अभी तकरीर शुरू करा नहीं, इस्लाम कितना सही मजहब है, माइक से बात आ गई है। इंशाअल्लाह ताला जितनी बातें हमारे सामने आएंगी वो तमाम बातें इंशाअल्लाह करते रहेंगे। वंदे मातरम जिसको हमारी ही कौम के कुछ अंदर के लोग भी कहते हैं कि हजरत एक जुमला बोल डाला तो क्या हो जाता हजरत, ऐसे ही कुछ बांद्रे का तो समझते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं उसे, बंदर। उतनी प्योर उर्दू चलती क्या यहाँ? ऐसे ही कुछ बंदर बोलते, एक जुमला मुंह से बोल डाले तो क्या होता हजरत? मैं बोला कौन तू भी, तुमने तुम्हारी अम्मा की गाली दे डाला तो क्या होता? ऐसे अपने को वोट बोलना से हजरत। जब कोई किसी को वही जुबान और दांतों के बीच से, वही होठों के बीच से किसी को मां की गाली देता है, सामने वाला बर्दाश्त नहीं करता, उसी जुबान से अगर कोई कुफरिया कलिमा निकालता है तो खुदा को कैसे बर्दाश्त होगा? और सुनो मेरे प्यारो, तवज्जो के साथ सुनो, सीरत पर बात कर रहा हूं, ये बातें भी सीरत में है। सीरत का मतलब ये नहीं सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करना, बल्कि सीरत का मतलब ये है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले वो भी सुनना सीरत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीजों से बचाए हैं वो भी सुनना सीरत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द भी सीरत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र भी सीरत है, ईमान का इजाफा भी सीरत है, ईमान की हिफाजत भी सीरत है। अगर कोई किसी को कच्ची गाली देता है, पक्की गाली देता है, तो सामने वाले को गुस्सा आता है। अल्लाह जिन बंदों को पैदा किया है उन बंदों के जुबान से कोई शिरकिया जुमला निकलता है, अल्लाह को गुस्सा आता है। जब कोई किसी को कच्ची गाली देता है, जवाब में वो पलटा कर मारता है, मार खाने वाला जान से बाहर होता है, जवाब में अल्लाह ताला मारता है तो बंदा ईमान से बाहर होता है। उलमा है, सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते, लोगों के चेहरे भी पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बात आ गई तो इस पर बात अर्ज करूंगा। अर्ज कर रहा था सारी दुनिया में सबसे प्यारा मजहब इस्लाम, सबसे अच्छा मजहब इस्लाम, सही मजहब इस्लाम। मैं एक जगह पर गया कर्नाटक में, पढ़े लिखे लोगों का मजमा था। किसका? पढ़े लिखे लोगों का। मुझे बयान करने से पहले चीटी आ गई, मोबाइल रख डालो बेटे, रख डालो मोबाइल अंदर रखो। बयान करने से पहले चीटी आ गई, हजरत क्या भी तुम्हें जरा बाहर के बातें करो नको हजरत, हुकूमत के खिलाफ बोलो नको हजरत। मैं बोलिया हुकूमत मेरी छोटी सो बीवी क्या, मैं उसके खिलाफ बोलने के वास्ते क्या हजरत, मैं कहीं को हुकूमत के खिलाफ बोलूं? हुकूमत को बोलो, हमारे खिलाफ का भी बोलो नको बोल को। ये दीवाने दिया
ہمیں کون کس کے خلاف بولتے ہیں؟ اس سے اچھا پیغام کسی کتاب کے اندر ہے جو پیغام ہماری کتاب کے اندر ہے، جو ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی پر جو قرآن نازل کیا، اس قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس پر امن بھی قربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس پر امن قربان ہے۔ ایسے امن والی آیت دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، ایسا امن والا جملہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاؤ رے بابا، آ رہی ہے؟ توجہ کے ساتھ سنو، ہم نہ اتنا باہر کا ماحول نہیں ملتا جتنا تم نہ ملتا۔ ہمیں ہوٹلوں کو جاتے نہیں، کب تبھی میں گیا تو فوٹو پکڑ کو واٹس ایپ کرو کو جاتے نہیں کہ تو خامخواہ جاتے نہیں، سفر کرتے کرتے کب بھی موقع جا کو کھانے کا مل گیا تو کھا لیتے کی کہ تو گھر ہمارا بنگلور میں ہے، شیواجی نگر میں ہے، باہر نکلے تو گھراں تو گھس نہیں سکتے نا، ٹرین میں کب بھی کھا لیے، ریلوے اسٹیشن میں کب بھی بھوک لگیا تو کھا لیے، بس اسٹینڈ میں کب بھی بھوک لگیا تو کھا لیے، بس جا کو کانتی بھی کھڑائی تو کھا لیے۔ لیکن بات یہ ہے میرے دوستو، آئی تو بات عرض کر دیتا ہوں، میں بھی عمل کر رہا ہوں، آپ بھی عمل کرو کہ بغیر کسی سخت ضرورت کے ہوٹلوں میں مت کھاؤ، اس لیے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ہوٹل میں کھانے والے آدمی کے دل سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہوٹل والے کون بھی بیٹھے رہے تو میرے پاس میرے اوپر، وہ بھی ہائی کورٹ کا کیس نہیں، سپریم کورٹ کا کیس، حضرت کو سیرت بولو کہ تو ہمارے ہوٹلوں کے بارے میں بول ڈالے، سبا کو اگر 1000 کا نقصان ہوا تو لائر کو پکڑ کو ایسا جھوٹ فٹ کرتا، جھوٹ بھی پریشان ہو جاتا۔ حضرت لکھو جی، ان کے بیان کے بعد مجھے ڈیلی 50,000 کا نقصان ہے، بڑی مشکل سے 1,500 نہیں کما رہا ہے۔ ارے چل رہا نہیں چل رہا؟ لائرہ کے پاس میاں بیوی لڑ لیتے، میں بیان کہاں سے شروع کرے یاد ہے نہیں ذہن میں؟ لائر میاں بیوی لڑ لیے تو لڑتے نہیں، کیا گاؤں کا نام بولو نا، بشیر آباد میں میاں بیوی لڑتے نہیں، سب خاموشی، لڑتے ہی کہتے لڑتے ہی بولو، نہیں کہتے نہیں بولو، نہیں کہتے زور سے بولو، اگر تمہیں صحیح بولے نہیں بول کر تو بنگلور کے پورے رشتے یہاں لگا تم۔ کیا حضرت اللہ، ایسے معلوم ہوتا شادیاں کر رہی سے لڑنے کے واسطے۔ ارے دیوانوں، پاگلوں، لڑکوں لڑکیوں، شادی کرنے کا مقصد ہی پیار ہے، شادی کرنے کا مقصد ہی محبت ہے، شادی کرنے کا مقصد ہی اتحاد ہے، شادی کرنے کا مقصد 2 خاندان کو ایک خاندان بنانا ہے، شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری محبتوں کا ثبوت دینا ہے، تمہارے پیار کا ثبوت دینا ہے، تمہارے اتحاد کا ثبوت دینا ہے۔ معصوم بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جملوں کے اشارے سمجھتے جاؤ، انشاءاللہ تعالی بات کھل کر آ جائے گی۔ شادی کا مطلب لڑنا نہیں ہے، شادی کا مطلب اختلاف نہیں ہے، شادی کا مطلب ایک دوسرے کا مذاق نہیں ہے، شادی کا مطلب اپنا دین برباد کرنا نہیں ہے، شادی کا مطلب اپنے اخلاق برباد کرنا نہیں ہے، شادی کا مطلب اپنا معیار گھٹانا نہیں ہے۔ شادی اللہ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، یہ علماء کرام بتائے ہوں گے، نماز زمین میں پڑھی گئی، روزہ زمین میں رکھا گیا، زکوٰۃ زمین میں دی گئی، حج زمین میں کیا گیا، لیکن نکاح آسمان میں سب سے پہلے ہوا ہے۔ نماز سب سے پہلے کہاں پڑھے؟ زمین میں۔ روزہ سب سے پہلے کہاں رکھے؟ زمین میں۔ زکوٰۃ سب سے پہلے کہاں دیے؟ زمین میں۔ حج سب سے پہلے کہاں کیا گیا؟ زمین میں۔ لیکن سب سے پہلے نکاح کہاں ہوا؟ دیکھو جن کا نہیں ہوا اتنا زور سے ہی لگا بول رہی ہے۔
5G کا دور نہیں ہے، ترقی کا دور. مذاق سے بولے سے کہا یہ بچے اپنے ماں باپ کو اشارہ دے رہی، کرتے ہی کی کر لے نہ کی بول کر رہے ہیں. ابھی قریب ایک لطیفہ پڑا. ایک بچہ رولے کو تھاکتے، چھوٹا بچہ گھر میں رولے کو تھاکتے، بابا کو پوچھا کرتے کی بیٹا رو رہا؟ بچہ تمہاری بیوی سے میرا کیا بھی ہو رہا ہی نہیں، خالی میرے سے لڑنے کو رہتی تمہاری بیوی، میرے واسطے میری بیوی کا انتظام کرو. چھوٹا لطیفہ ہے. آج کے زمانے میں بچے فارورڈ ہو گئے ہیں، ان کو وہ سب چیزیں معلوم ہو گئی ہیں ایک زمانے میں 25-30 سال کے نوجوانوں کو نہیں معلوم تھا. یہ عمر میں بچے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ایک زمانے میں بڑی عمر کے لوگ حلال راستے میں نہیں دیکھتے تھے، حرام راستے میں بچے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ان کا ذہن کیسے تیز ہوگا؟ ان کو قرآن کیسے یاد ہوگا؟ ان کو دعائیں کیسے یاد ہوں گی؟ ان کو حدیثیں کیسے یاد ہوں گی؟ نگاہ کا اثر دانتوں میں پڑتا نہیں، غلط نگاہ کا اثر کانوں میں پڑتا نہیں، غلط نگاہ کا اثر دل اور جگر میں پڑتا نہیں، غلط نگاہ کا اثر ہاتھ اور پیر میں پڑتا نہیں. صاف علماء کرام نے لکھا ہے غلط نگاہ کا اثر دماغ پر پڑتا ہے. قرآن یاد کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، حدیث یاد کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، دعائیں یاد کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے. اگر یہ بچوں کا اس عمر میں دماغ خراب ہو گیا تو پھر میرے دوستو آنے والی نسلوں میں کون حافظ قرآن بنے گا، کون محدث بنے گا، کون مفسر بنے گا، کون فقیہ بنے گا؟ اے میرے پیارو، بشیر آباد کے مسلمانوں اور ان چینلوں سے بات کہاں جاتی ہے وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے آنے والے زمانے میں حفاظ پیدا ہو، علماء پیدا ہو، مفسرین پیدا ہو، فقہا پیدا ہو، چلو ایک بات کہتا ہوں، ہمارے زمانے میں تو پکے حافظین موجود ہیں، صحیح علماء کرام موجود ہیں، سچے مفتیان کرام موجود ہیں، مفسرین کرام موجود ہیں. تمہارا زمانہ، ہمارا زمانہ، ہمارا زمانہ، تمہارا زمانہ، تم مصلی ہو تو ہم امام ہیں، تم مقتدی ہو تو ہم امام ہیں. چلو ہمارے بعد آنے والے زمانے میں ہماری نسلوں کو صحیح ائمہ کہاں ملیں گے، صحیح خطبہ کہاں ملیں گے، صحیح حفاظ کہاں ملیں گے؟ میرے پاس ایک نتیجہ موجود ہے. اظہر صاحب توجہ چاہتا ہوں، مولانا توجہ چاہتا ہوں، حضرت والا توجہ چاہتا ہوں. میرے پاس ایک ریسرچ ہے، آج سے 20 سال پہلے جتنا بچوں کو قرآن یاد ہوتا تھا آج اتنا آسانی کے ساتھ بچوں کو قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کے ہاتھوں میں موبائل، اور ہر موبائل میں اسمارٹ سسٹم والا موبائل جس کے اندر انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ دجال کے ڈائریکٹ اولادوں میں سے ایک اولاد ہے. دجال کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے، دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہی اسے رکھنے کی اجازت رکھتے ہیں. جس کے پاس انٹرنیٹ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اسے انٹرنیٹ رکھنے کی اجازت خود شریعت نہیں دیتی. صوفیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے بازار کو جا کر چیزیں خریدنے کی اجازت اسی کو ہے جو بازار میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے. جس کو بازار جا کر اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ کسی غلام اور مزدور کو پیسے دے کر بازار سے سودا منگا لے، خود جا کر اپنے ایمان کو غارت نہ کرے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں اسی لیے جملہ شروع میں کہا تھا اسی کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. اسلام مذاق نہیں ہے،
इस्लाम मजाक नहीं। उठे तो मसले, बैठे तो मसले, खाए तो मसले, पिए तो मसले, सोए तो मसले, खुशी में मसाइल, गम में मसाइल। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने बंदों से कहता है तेरे एक हाथ में मेरा दामन हो, दूसरे हाथ में मेरे मोहम्मद का दामन हो, तब जाकर तू मेरा बंदा बनेगा, मेरे मोहम्मद का गुलाम बनेगा। हाथ हो तेरे हाथों में मेरा दामन भी नहीं, मेरे मोहम्मद का दामन भी नहीं, तो इंसान की शक्ल का गैर तो हो सकता है, जानवर तो हो सकता है, लेकिन हमारा नहीं हो सकता। सही बात, सही बात। कितनी बड़ी बात फुकहा ने फरमाया। बाजार को जाते नहीं जाते? अरे जाते नहीं जाते? जाते। बाजार को जाकर अपने निगाहों की हिफाजत करना इस वक्त सबसे बड़ा तकवा है। सही बात। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमको हिंदुस्तान में पैदा किया है। सही बात। बहुत बड़ी बात है हजरत। बेंगलुरु मालूम? बेंगलुरु ऑस्ट्रेलिया में है नहीं? कहाँ है? कर्नाटक। तुम्हें ही क्या देख रहा हूं सो बार बार। बेंगलुरु मालूम? बेंगलुरु में एक जमात आई अमेरिका की। अमेरिका मालूम? हैदराबाद के बाजू है नहीं? अमेरिका नहीं मालूम क्या हजरत? अल्लाह अकबर। कौन टीवी हलाल मेहनत हमारे गांव में करता है, दिन को 200 रुपए कमाता, बोले तो उसे इतनी इज्जत नहीं देते। अपने ईमान को खतरे में डालकर अमेरिका में कमाता का तो बावा का सीना भी 56 इंच का हो जाता है। अम्मा का दिमाग तो सूरज में अटक कर, मेरा बेटा अमेरिका में, मेरा बेटा, ताकि जन्नतुल फिरदौस में बोले सगा बोल रही है ना हजरत हाल। अल्लाह अकबर कबीरा। अमेरिका गैर मुस्लिमों को सदका दे सकते, गैर मुस्लिमों को तोहफा दे सकते, लेकिन ज़कात गैर मुस्लिमों को नहीं दे सकते। ये हमारे अपने धर्म की बात है। अगर गैर मुस्लिमों को ज़कात देना जायज होता तो मैं रमजानुल मुबारक में मुसलमानों की ज़कात उसूल कर को पूरे पूरे कपड़े बना को अमेरिका भेजता। सही बात। गरीबा उन्हों कपड़े नहीं। खड़े तो आधा खुल जाता, झुके तो पूरा खुल जाता। तौबा 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 तौबा। दौलत है नहीं खाया, उससे बड़ा गरीब कौन? सही बात। दौलत है नहीं पिया, उससे ज्यादा गरीब कौन? दौलत है अगर नहीं पहना, उससे ज्यादा गरीब कौन है? दौलत का असर खाने पर पड़े, दौलत का असर पीने, पीने के तो हो नहीं रे बाबा, वो अलग मसले। क्या अजर साहब? पानी पियो, शरबत पियो, रूह अफ़ज़ा पियो, समझ में आई बात है? जो अच्छा हलाल रास्ता है पियो। दौलत का असर खाने पर पड़े, दौलत का असर पीने पर पड़े, दौलत का असर कपड़ों पर पड़े। जिन औलिया को अल्लाह दौलत दिया वो बराबर अल्लाह की दौलत का इजहार करते थे। अच्छा खाते भी थे, अच्छा खिलाते भी थे, अच्छा पीते भी थे, अच्छा पिलाते भी थे, दावतों पर दावतें करते थे, खुद भी अच्छा पहनते थे, आला कपड़ा पहनते थे। खुद मेरे आका की सीरत में आता है, आका के कपड़ों का पैवन का जिक्र बार बार आता है। दोस्तों, आका बतकल्लुफ गरीब थे, आका बतकल्लुफ गरीब थे, इसलिए गरीब थे उम्मत के गरीबों का दिल न टूटे, वरना आका के पास भी दौलत ऐसी थी कि एक एक जोड़ा आका की कीमत का आता है। हदीसों में 200 दीनार का जोड़ा भी आका ने पहना है।
200 दीनार का जोड़ा भी पहना है। अल्लाह ताला अगर दौलत दिया है, इसराफ करे बगैर पहनो, फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद वही कपड़ा उठाकर किसी गरीब को दे दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है, आप लोग अपने उलमा से सुने होंगे, इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 4 इमामों में से एक इमाम है जिनका इल्म 4 में बड़ा इल्म है, जिनका तकवा 4 में बड़ा तकवा है। कुरान के किनारे नहीं बैठे, कुरान के समंदर के गहराई में उतर गए, हदीस के समंदर की गहराई में उतर गए, ऐसे ऐसे मसाइल निकाले। हजरत इमाम अबू हनीफा खुद फिका हजरत इमाम अबू हनीफा पर नाज करता है, इस्तिदलाल इमाम अबू हनीफा पर नाज करता है, इज्तिहाद इमाम अबू हनीफा पर नाज करता है। अगर मैं कभी हजरत इमाम अबू हनीफा की सीरत शुरू कर लूंगा, यकीनन तहज्जुद का वक्त हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दौलत भी अता फरमाया, माल की दौलत भी अता फरमाया, इल्म की दौलत भी अता फरमाया है। अल्लाह ताला माल की दौलत भी अता फरमाया, इल्म की दौलत भी अता फरमाया है। हजरत इमाम अबू हनीफा रोजाना एक नया जोड़ा पहनते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना एक नया जोड़ा पहनते थे। आज अगर कौन से तो भी मौली साहब एक नया जोड़ा पहने, इलाका छोड़ता उनको, मोहल्ला छोड़ता उनको, जमाना छोड़ता उनको, 5 साल में एक मर्तबा गाड़ी बदले तो नई सोच में को पेट में दर्द आ जाता, आता नहीं आता। घर बन डाले तो अल्लाह अकबर, ईडी वाले, बैंक वाले, हुकूमत वाले उतना हिसाब नहीं करते जितना के कौम हिसाब करती। खुद तनख्वाह देने वाले पूरी पूरी रात हिसाब करते, देते 115,000, साल के कितना हुआ 1,80,000, जोड़ू भी है, बच्चे तो फुल ही, मौली साहब को बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे महंगे दौर में भी 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास हालात के वाकयात का अंबार मौजूद है। कर्नाटक के एक इलाके को गया, अल्लाह के फजल व करम से ये जो जमात बच्चों की बैठी है नहीं, उनके घर में ऐसे ही बच्चों की जमात बैठी है। मैंने मौलाना से पूछा घर में मकतब चलता क्या? मौलाना कहे नहीं हजरत, मकतब नहीं, मेरे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ना शर्म की बात है, ना हया की बात है, ना शर्म की बात है, ना हया की बात है। कसरत से बच्चे रखने वाला कल क़ियामत में आका उससे जितनी मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह कम बच्चे रखने वाले देखते रह जाएंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? कसरत से बच्चे पैदा करो। ये आका बोल रहे, कसरत से कतो ज्यादा बच्चे, कम से कम इंशाअल्लाह तो बोलो, नस्ल में बरकत आ जाती। कसरत से बच्चे पैदा करो, आका फरमाते हैं कसरत से बच्चे पैदा करो। और एक जगह आका फरमाते हैं उससे शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली है। सुभान अल्लाह। अब तुम्हें पूछेंगे शादी छुई नहीं, कैसा मालूम होता? ये सवाल किताबों में है क्या मुस्तफा साहब? है नहीं किताबों में। उससे शादी करो, गोरी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उससे बेहतर है काली जो बच्चे पैदा कर सकती है। आका ने फरमाया उससे निकाह करो। देखो ट्रेन भी क्या की बोल रही है। काली है, बच्चे ज्यादा पैदा कर सकती है। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे शादी करो। क्यों? अब सवाल का जवाब सुनो, सवाल का जवाब सुनो, क्योंकि आका के फरमान आला फरमान है। आका के फरमान में एतराज पैदा नहीं होता, आका के अमल में एतराज पैदा नहीं होता, आका के फरमान में शिकायत पैदा नहीं होती, एतराज पैदा नहीं होता। एतराज अगर कोई करता है तो जवाब में मिल जाता है, जवाब सुनकर भी इनकार करने वाला जहन्नम पहुंच जाता है। आका पाक जात का नाम है,
आका पवित्र जात का नाम है, आका आला जात का नाम है, आका अकमल जात का नाम है, आका अजमल जात का नाम है, आका अफजल जात का नाम है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, आका से पहले न आका जैसा, आका के बाद न आका जैसा। सुभान अल्लाह। आका से पहले भी आका जैसा नहीं, आका के बाद भी आका जैसा नहीं। आका से पहले आका के हुस्न जैसा हुस्न भी किसके पास भी नहीं। आका के बाद उम्मत का जमाना है, नबियों का जमाना नहीं। आका से पहले नबियों का जमाना, आका के बाद उम्मत का जमाना, आका के बाद कोई नबी पैदा नहीं हुआ। मौलाना ने आपको अकीदा बता कर गया, मैं जरा आपको खोल कर बयान कर रहा हूं। आका से पहले का जमाना नबियों का जमाना था, आका के बाद का जमाना उम्मत का जमाना। मेरे प्यारो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुरूद पढ़ो एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका के जैसा हसीन आका से पहले नबियों के जमाने में खुद कोई नबी नहीं था, तो फिर उम्मत में आका के जैसा हसीन कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, बेशक। समझ में आई बात? उम्मत में आका के जैसा कौन हो सकता है? आका से पहले आका के जैसा हसीन भी नहीं। आका के पास जो इल्म था, ऐसा इल्म किसी नबी के पास भी नहीं। नबियों के पास जो इल्म था उम्मत से ज्यादा था, लेकिन मेरे आका के पास जो इल्म था उम्मत से ज्यादा इल्म नहीं था, नबियों से ज्यादा इल्म था। नबियों के पास जो हुस्न था वो उम्मत से ज्यादा हुस्न था। मेरे आका के पास जो हुस्न था वो उम्मत से ज्यादा हुस्न नहीं था, बल्कि नबियों से ज्यादा हुस्न था। आका के पास जो अकल थी नबियों से ज्यादा अकल थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर ऐसी जात के फरमान में एतराज कैसे पैदा हो सकता है? ऐसी जात के अमल में कैसे एतराज पैदा हो सकता है? आका बोलते हैं मान लेना, एतराज अगर कोई करता है उसका जवाब भी है। आका ने क्या फरमाया? उससे शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है। शारिहीन ने फरमाया, हदीस के शारिहीन ने फरमाया, हदीस के शारिहीन ने फरमाया, लड़का हो के लड़की, उनकी तबीयतों में माँ बाप का असर पैदा होता है। लड़के पर बाप की तबीयत का असर पड़ता है, लड़की पर माँ की तबीयत का असर पड़ता है। समझ में आ रही है बात आपको? लड़के पर बाप की तबीयत का असर पड़ता है, लड़की में माँ की तबीयत का असर पड़ता है। जरा मैं थोड़ा इशारा दिया, आप समझ जाओ क्या क्या तबीयत में असर पड़ता है। लड़के पर बाप की तबीयत का असर पड़ता है, लड़की पर माँ की तबीयत का असर पड़ता है। शारिहीन ने किराम ने फरमाया, बच्ची जिससे तुम शादी करना चाहते हो उसकी अम्मा को देखो, उसके कितने बच्चे हैं। अगर उसकी माँ को ज्यादा बच्चे हैं तो इंशाअल्लाह ताला समझ जाओ उसकी बच्ची की तबीयत में भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की ताकत आकर रहेगी। समझ में आई बात? बेटा बेटे, ये बच्चों को उठने दो, उनको बीच में, अजीब बच्चे ही नहीं। एक 4 दिन के वास्ते आसाम में जाको छोड़ डाले तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे डालेंगे दिखता। क्या बोला ना? जरा वक्त बैठो बेटे, खाली रात की 1 बजे तक बैठो, बस होता है। समय स्कूल है क्या? अरे स्कूल है नहीं समय को, है तो छुट्टी डालो। कई को गई नहीं बोलकर पूछे तो रात को जलसा था, बोलो क्या क्या की हंगामे के वास्ते छुट्टी डालते, नबी की सीरत के वास्ते नहीं डाल सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्थडे किसका की होता छुट्टी ये घुग्गू डालता, निस्बत किसकी की होती इन्हें छुट्टी डालता। कल की छुट्टी अगर हुजूर की सीरत के लिए पड़ गई, कौन सा एग्जाम में नाकाम होने वाला है? बल्कि मेरा ईमान है हुजूर के नाम पर छुट्टी भी पड़ती है, वो छुट्टी भी कामयाबी की जमानत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। खैर जरा वक्त खामोश बैठो बेटे, उठना गिटना करो उनको,
पेंट के बातें आ रही, तुम्हें भी समझने की कोशिश करो, वैसा तो समझ चुके ही तुम्हें समझे बोलकर ही जहां तक बात को लेकर आया हूं सो मैं समझ में आई बात है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात आ गई, कसरत औलाद की बात आ गई, पूरा उन्वान मेरे जहन में है। अल्लाह ताला जहां तक मुझे लेकर जाए मैं आपके सामने वो तमाम बातें बयान करने की इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। आका ने क्या फरमाया, कसरत से बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो। कैसे पता चलेगा कि कसरत से बच्चे पैदा करने वाली है? मां को देख लो। यहां तक फुकहा फरमाते हैं कभी कभी बच्चियों पर खाला की तबीयत का असर भी पड़ता है। सुभान अल्लाह, खाला की तबीयत का असर भी पड़ता है। इसीलिए एक हदीस में आका ने फरमाया, मां ही मां नहीं होती, खाला भी मां होती है। बाप ही बाप नहीं होता, चचा भी बाप होता है। रिश्ते पहचानो मेरे प्यारों। मेरे आका आकर रिश्ते भी बता कर गए हैं, रिश्तों का तारीफ भी करा कर गया, रिश्तों की अहमियत भी बता कर गई है। आज जमाना रिश्ते नहीं जानता, आज जमाना रिश्ते नहीं पहचानता, आज जमाना रिश्तों का हक अदा नहीं करता। आज जमाना क्या है, पूरी खैरियत और आफियत, पूरी मोहब्बत मोबाइल से अदा करके हक अदा करने की कोशिश करता है। ये जमाने में जरा मालूम करो कितनी खालाएं भांजियों से मिलकर कितने साल हो गए, कितने भांजियों खालाओं से मिलकर कितने साल हो गए, कितने चचा अपने भतीजे और भतीजियों से मिलकर कितने साल हो गए, कितने भतीजे और भतीजियां अपने चचा और ताया से मिलकर कितने साल हो गए। अल्लाह अकबर। जिस दौर को हम तरक्की का दौर कहते हैं, इस दौर में हर अच्छा अमल दफन हो रहा है, सही बात हर अच्छा अमल दफन हो रहा है। इसीलिए तो इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, नफरतें बढ़ रही हैं। आज पहला पैगाम देता हूं जिस पर मैं खुद अमल करता हूं, जी जरूर, अल्लाह रसूल गवाह है। सही बात, ये बच्चा ये भी जानता है मैं खानदान को जोड़ कर रखने की बड़ी मेहनत और कोशिश करता हूं। दावतें घर के अंदर करो, कभी खाला को बुलाओ, कभी मामा को बुलाओ, कभी चाचा को बुलाओ। खाली तकरीरों से मोहब्बत पैदा नहीं होगी, तकरीरें सुनकर अमल करने से मोहब्बत पैदा होगी। और बाहर इत्तेहाद अगर पैदा करना है, पहले घरों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो। सही बात, घरों के अंदर लड़े और बाहर इत्तेहाद की बात करना बेवकूफी है। एक दूध में इत्तेफाक ना आए, फिर बाहर क्या इत्तेफाक आएगा? एक खून में इत्तेफाक ना आए, बाहर क्या इत्तेफाक आएगा? वो भी ईमान में इत्तेफाक ना आए तो फिर दुश्मनों के मुकाबले में ऐसे इख्तिलाफ के साथ हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? आपस में एक बनो, आपस में एक बनो, एक दूसरे को माफ करो, दरगुजर करो। हमें आपस में एक दूसरे की गलती को हमें माफ नहीं करेंगे तो फिर गैर हमको कैसे माफ करेगा? तुमने मैं माफ नहीं करा तो फिर कौन माफ करना? मैं तुमने माफ नहीं करा तो फिर कौन माफ करना? बहन को बहन माफ नहीं करी तो फिर बहन बनकर फायदा क्या? भाई को भाई माफ नहीं किया, भाई बनकर फायदा क्या? जाए वो जंगल में जानवरों के साथ जिंदगी गुजारे। जब खून तुम्हारा एक है, दूध तुम्हारा एक है, कभी आगे पीछे कोई बात हो जाती है, कभी आगे पीछे कोई काम हो जाता है, दरगुजर करो, माफ करो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी कैसे कैसों को माफ कर दिया। अबू लहब की बेटी को माफ किया हमारे नबी ने। अल्लाह अकबर। अबू लहब कौन है? प्यारे आका का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी बेटी कलमा पढ़ती है, आका ने अबू लहब की बेटी को माफ कर दिया। जब वो बेटी कलमा पढ़ती है, आका माफ करते हैं, कलमा पढ़ती है। मक्के के कुछ लोग ऐसे ही छोटा मजाक करते हैं, मौत से डरकर अबू लहब की बेटी ने भी कलमा पढ़ लिया। आका जलाल में आ गए, आकर कहने लगे खबरदार,
अबू लहब की बेटी को कोई न छेड़े, उसके ईमान का मैं गवाह हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अबू लहब की बेटी को कोई न छेड़े, उसके ईमान का मैं गवाह हूं। याद रखो, ये कोई ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं, अपने जमाने के सरदार की बेटी है। ये नबी का फरमान है, ये ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं है, अपने जमाने के सरदार की बेटी है। और अरब अपने सरदारों का बड़ा इकराम करता है, अरब अपने सरदारों का बड़ा इकराम करता है। अबू जहल, अबू लहब काबिल इकराम थे, लेकिन चूंकि कलमा नहीं पढ़े जलील हो गए, कलमा नहीं पढ़े बर्बाद हो गए। अगर अबू लहब कलमा पढ़ लेता, अबू जहल कलमा पढ़ लेता, तो फिर वो भी सहाबा के सफ में आ जाता। हुजूर का फरमान है, अरब अपने सरदारों का बड़ा अदब करते हैं, अपने बड़ों का बड़ा अदब करते हैं, अपने रहबरों का बड़ा अदब करते हैं। ये सरदार की बेटी है, वो कलमा पढ़ चुकी है, अल्लाह की निगाह में उसका मकाम बढ़ गया है। हशर के मैदान में जुमला सुनो, बशीराबाद के मुसलमानों जुमला सुनो, आका ने फरमाया हशर के मैदान में अल्लाह ताला उसके बाप को देखकर उसका फैसला नहीं करेंगे, मेरी सूरत देखकर उसका फैसला करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, आका माफ करे कि नहीं करे। अबू जहल, दो बड़े दुश्मन, दो की औलाद भी ईमान लेकर आ गई, अबू लहब की बेटी भी ईमान लेकर आ गई, अबू जहल का बेटा भी ईमान लेकर आ गया। अब अबू जहल के बेटे के साथ कोई मजाक नहीं कर सकता, अबू जहल के बेटे के साथ कोई इस्तेहजा नहीं कर सकता, अबू जहल के बेटे के साथ कोई तौहीन नहीं कर सकता। क्यों? ईमान लेकर आ गए। अब अबू जहल के बेटे को नाम लेकर ऐसे ही नहीं पुकारेंगे, हजरत कहेंगे। क्या कहेंगे? हजरत कहेंगे। और सिर्फ हजरत नहीं कहेंगे, रजी अल्लाह अन्हु कहेंगे। मतलब क्या? अबू जहल का बेटा इकरमा अब हजरत भी बन गए। मतलब क्या? अबू जहल के बेटे कौन? जिनसे अल्लाह राजी है। रजी अल्लाह अन्हु का माना क्या? जिनसे अल्लाह राजी होता है उनको रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं। सहाबा को ये खिताब, सहाबा को ये टाइटल, सहाबा को ये इनाम अल्लाह ताला दिया, वो भी डायरेक्ट कुरान में दिया है। उठाकर देखो, सहाबा की शान अल्लाह ने जब बयान की है तो ये खिताब अता फरमाया रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। याद रखो, आका ने अबू जहल के बेटे को भी माफ कर दिया, ऐसा माफ कर दिया कि आका ने दुआ दी, अबू जहल के बेटे को दुआ कबूल हो गई। आका की तो हर वक्त की दुआ कबूल होती ना, दुआ कबूल हो गई। उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखो, सहाबा में जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन थे उनमें हजरत इकरमा का नाम आता है। आका माफ करते, हमें भी माफ करना। सबसे पहले इत्तिहाद घरों में पैदा करो, खानदान में पैदा करो, मोहल्ले में पैदा करो, गांव में पैदा करो, फिर उसके बाद असर देखो, तुम्हारे रियासत में पड़ेगा, रियासत का असर मुल्क में पड़ेगा। फिर उसके बाद देखना, उम्मत अगर इत्तिहाद के साथ मिलकर थूकेगी, दुश्मन डूब कर मर जाएगा। उम्मत अगर मिलकर इत्तिहाद के साथ थूकेगी, दुश्मन डूब जाएगा। और इत्तिहाद पैदा करने के लिए नबी ने जो तावीज़ात दिए हैं, नबी ने जो वजीफे दिए हैं, उस पर अमल कर लिए, किसी घर में झगड़ा नहीं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस जुमले पर कसम खाने के लिए तैयार हूं। आप जो गारंटी लेना चाहते हैं ले लें, क्योंकि नबी के फरमान पर आपको भी भरोसा है, अल्लाह की कसम इस आजिज को भी भरोसा है। आका ने
उम्मत के दरमियान, भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, बाहर से अंदर आने वाले रिश्तों के दरमियान इत्तिहाद पैदा करने के लिए ऐसे ऐसे तावीज़ां दिए हैं, वो तावीज़ों के सामने दुनिया की कोई तावीज़ की कोई हकीकत नहीं। नारे रिसालत, नारे तकबीर। बशीराबाद में तावीज़ का व्यापार चलता नहीं चलता? बाज लोग चलता बोलते हैं, बाज लोग नहीं चलता बोलते। गारंटी से अगर तुम्हें बोले नहीं चलता का तो मैं दुकान नहीं फैक्ट्री खोलने दूं। इत्तिहाद, मोहब्बत, खाई आपा औरता में ही नहीं, अब माशाअल्लाह दूर ही नहीं, औरता बार बार बोल लेकर भी थे, खाना खाते वक्त, आराम करते वक्त, कसीर तादाद में औरत आ रही हजरत, कसीर तादाद में औरत आ रही हजरत बोलकर बोल लेकर थे। मैं समझा नहीं आखिर ये कसीर तादाद में आ रही बोलकर खबर दे रही की नहीं मंजे डरा रही की मालूम नहीं है। माएं और बहनें, घरों में इत्तिहाद कायम करने के लिए तुम्हारे रोल की बहुत जरूरत है, तुम्हारे अखलाक की जरूरत है, तुम्हारे किरदार की जरूरत है। मुझे माफ कर मेरी आपा, मुझे माफ कर मेरी अम्मा। घर का जुड़ा हुआ माहौल दूध फूटे जैसा फूटता है, मर्दों की वजह से नहीं, औरतों की वजह से। सही बोलो कि गलत बोलो? देखो सही बोल रही बोलकर बोलने की भी हिम्मत नहीं लगा हुआ। बिल्कुल सही है। आपा गुस्सा मत कर, अगर तू इससे बाहर है अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर मेरे जुमले के अंदर है तो फिर अपने आप को बदल। घरों का माहौल जुड़े हुए दूध में जमन पड़ता है, जैसे दूध फूटता है वैसे घरों का माहौल फूट गया। मुझे फिर माफी के साथ कहने की इजाजत दो, इस टूटने और फूटने के जिम्मेदार घर की औरतें होती है। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बच्चियां, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर को तुम खानदान का मरकज बना सकती हो। तुम चाहे तो तुम्हारे घर को तुम प्यार और मोहब्बत का गुलिस्ता बना सकती हो। खुदा तुम्हारी तबीयत में सब्र देकर वो सब्र तुम इस्तेमाल नहीं करती। मर्द के मुकाबले में हर लाइन का सब्र अल्लाह ताला ने तुमको दिया है। ये मासूम बच्चे न बैठे होते मैं तमाम बातें खोल कर बयान करता। समझने की कोशिश करो, बात समझ में नहीं आई बाद में जाकर इन नौजवान उलमाए किराम से पूछ लेना मौलाना क्या इशारा दिए इस जुमले पर, अगर वहां मिल गई तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। कभी मेरे से मुलाकात हो गई, खुद मुझसे पूछो मैं क्या जुमला छुपा कर तुम्हारे सामने पेश किया। अल्लाह ने हर लाइन का सब्र तुमको दिया है, लेकिन वो सब्र तुम इस्तेमाल नहीं करती। तुमको तो मर्दों से भी ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे माफ फरमा दे हजरत, आप बैठे हैं या बड़े हजरात बैठे हैं, मुझे माफ फरमा दे। मैं इस्लाह के लिए दिल के दर्द के साथ कहना चाहता हूं, आज औरतों को गुस्सा मर्दों से भी ज्यादा आ रहा है। और औरतें अपना गुस्सा बच्चों पर उतारती नहीं, खुद के बाप पर उतार रही है। तोबा तोबा, जने सो बाप पर बेटी गुस्सा उतारे, इसका नाम बेटी है, इसका नाम अखलाक है। इसे क्या फातिमा की बेटी कहेंगे, इसे आयशा की बेटी कहेंगे, इसे उम्मत मुस्लिमा की बेटी कहेंगे।
नहीं, ऐसी बच्चियों की निस्बत अम्मा फातिमा के साथ जोड़ेंगे, अम्मा फातिमा हमारे ऊपर गुस्सा करेंगी। सही बात, सही बात। ऐसी बच्चियों की निस्बत अम्मा आयशा के साथ जोड़ेंगे, अम्मा आयशा हमारे ऊपर गुस्सा करेंगी कि मुज़म्मिल कैसी बच्चियों को तू हमारे साथ जोड़ रहा है। सही बात। मैं कौन कैसे बैठे मुझे नहीं मालूम, अकेले बैठे ही समझकर मेरी बातों को सुनो। अगर बात तुम्हारी तबीयत के मुताबिक है, अभी इसी वक्त बैठे बैठे तुम तौबा करें। इसी का नाम जलसा है। सही बात। यह जलसा इसीलिए मुनक्किद किया गया है। बेंगलुरु से मुज़म्मिल को दिखाना मकसद नहीं है। मैं यूट्यूब में भी नजर आ जाऊंगा। मेरे से अच्छा बयान करने वाले उलमा तुम्हारे बीच में हैं, सिर्फ अंदाज है। कभी अंदर वालों की बात नहीं सुनते तो बाहर वालों को बिठाया जाता है। एक तरबियत का उसूल होता है। अभी इसी वक्त बैठे बैठे तू अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह मेरी ये तबीयत है, तूने मौलाना के मुंह में मेरी हालत डाल दिया, आज मैं तुझसे माफी मांगती हूं, तौबा करती हूं। खाली तू तौबा कर ले, अपने अमल को याद करके बात की जिंदगी सुधारना तेरा काम नहीं, अल्लाह का काम है। हदीसे पाक में आता है, जो अल्लाह का बंदा हो कि अल्लाह की बंदी अपने गुनाहों पर तौबा कर लेते हैं सिद्के दिल के साथ, आइंदा गुनाहों से वो बचता नहीं बल्कि अल्लाह बचाते हैं। बेशक बेशक बेशक। तौबा कर ले। तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं ज्यादा तेरे बारे में बोल रहा हूं मेरी आपा। ये बच्चों पर तबीयत, ये बच्चों पर अखलाक, ये बच्चों के ईमान, ये बच्चों के इस्लाम, ये बच्चों की हया, ये बच्चों के शर्म पर बाप से ज्यादा तेरी जिंदगी का असर पड़ता है। सही बात। तू अच्छी, तेरी नस्ल अच्छी। तू बाहया, तेरी नस्ल बाहया। तू बाशरम, तेरी नस्ल बाशरम। तेरे अंदर सबर, तेरा दूध पीने वाला बच्चा या बच्ची उसके अंदर सबर। तेरे अंदर दरगुजर, तेरे से दूध पीने वाला बच्चा या बच्ची दरगुजर का एक बहुत बड़ा मलका रखागा अपने हाथ में। अगर तू रास्ते से हटी तो फिर वो असर भी तेरे बच्चे पर पड़ेंगे। तेरे बच्चे बाहर जो करेंगे उसे देखकर जमाना बच्चों को नहीं थूकेगा, बच्चों को जन्मने वाले माँ बाप को थूकेगा। एक एक जुमला में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एहतियात के साथ सही कह रहा हूं, मर्दों से भी कह रहा हूं, खास तौर पर औरतों से कह रहा हूं। इत्तिहाद की बात आ गई तो मैं अर्ज कर रहा हूं, तुम अपने अंदर सब्र पैदा करो, दरगुजर पैदा करो, माहौल को जोड़ कर रखने की कोशिश करो, गुस्से में मत आओ। आज मर्दों से ज्यादा गुस्सा तुमको आता है, और वो गुस्सा किस पर? बाप पर। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसने तुमको जना और जिसको तुम्हारे जन्ने का अल्लाह ने सबब बनाया, उस पर गुस्सा, मां पर गुस्सा। ये तो शादी से पहले की बात है। शादी के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, शौहर पर अपना गुस्से का इजहार। कौन है आपा शौहर? मजाजी खुदा। कौन है शौहर? तुझसे वो नाराज होता है, खुदा तुझसे नाराज होता है। साफ हदीस है, जिस बीवी से शौहर नाराज हो जाता है, खुदा उस बीवी की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं करते जब तक कि उसका शौहर उससे राजी न हो जाए। एक वाकया बोलता हूं, सुनो। सुनेंगे? बोलूं कि नक्को बोलूं? तुम्हें नक्को बोले तो भी बोल रहा हूं सच। अच्छा।
उन्वान जहन में है नहीं? जी जी इस्लाम, वो एक जगह पर बयान करने गया, सब चीजें जहन में ही नहीं। हाँ, देखेंगे फिर वापस आने का मौका मिलता कि नहीं मिलता, कि होटल की बात भी आपको है। जी जी हाँ। अल्लाह के नबी को 7 बच्चे, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने बच्चे? 7 बच्चे, 4 बेटियां, 3 बेटे। बेटियों में सबसे छोटी जो बेटी थी वो हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका बच्चों से बराबर मोहब्बत करते थे। बाप अपने बच्चों में 19-20 करता है तो उन्हें बापित नहीं होता। ये सबक नबी दे रहे हैं। नबी अपने बच्चों की मोहब्बत में 19-20 क्या करेंगे? हशर के मैदान में 2 किस्म के लोगों को लखवे की हालत में अल्लाह उठाएंगे। कितने किस्म की? क्या हालत में उठाएंगे? लखवा बोले तो मालूम नहीं की फालिज, जी जी स्टोक। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया। आगा फिर भी ऐसा भी ठीक। फालिज स्टोक बोलते नहीं, आधा जिस्म ठंडा पड़ जाता। 2 किस्म के लोगों को अल्लाह उठाएंगे। एक किस्म कौन मालूम? अगर किसी को 2-3 बीवियां हो, वो शौहर अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करता, अल्लाह ताला उसको फालिज की हालत में खबर से उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। दीवाना उठा, मलिदा को उठा, हमने पूछता हजरत दूसरी शादी कर सकती क्या? बोलकर पहले घर में पूछ को, यहाँ हाँ मालूम होता। क्या बोल रहे? 7 करनी। अल्लाह, कौन बोल रही? उनको तुम्हें कर लो, इनको उठा लेकर जाओ भैया से, उठा लेकर जाओ, उठा ले जाओ, खामोश रहो। उठा लेकर जाओ, उनको उठा लेकर जाओगे। कौन ही नौजवान है कि जिम्मेदार? उठा लेकर जाओ। तो अर्ज कर रहा था, जिसको 2 बीवियां हो, उन्हें अपने 2 बीवियों के दरमियान में इंसाफ नहीं करता, तो अल्लाह ताला फालिज की हालत में उठाते। इधर इधर देखो, इधर देखो। दूसरा, अगर किसी को अल्लाह ज्यादा बच्चे देता है, वो बच्चों में इंसाफ अगर नहीं करते, बाप नहीं करता तो बाप को भी फालिज की हालत में उठाएंगे, मां नहीं करती तो मां को भी फालिज की हालत में उठाएंगे। हमेशा ये कहते हैं मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो, बिल्कुल सही, लेकिन मां बाप भी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना ना, बहुत गहराई में जा रही है बात। मां बाप भी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना नहीं। ज्यादा कमाने वाले बच्चे को एक नजर, कम कमाने वाले बच्चे को एक नजर। जिस बच्ची का शौहर लखपति है वो बच्ची को एक निगाह, जिस बच्ची का शौहर गरीब है उसे एक निगाह। चल रहा नहीं चल रहा है? जिस बच्चे की बीवी बड़े घराने से आती है उसे एक नजर, जिस बच्चे की बीवी छोटे घराने से आती है उसे एक नजर। चल रहा है आजकल घरों में। मैं बेंगलोर जैसे शहर में रहता हूं, तकरीबन 80% हिंदुस्तान का मैं दौरा कर चुका हूं, सीरत के माहौल में बैठा हूं। मेरी बात पर भरोसा करो, इस किस्म के वाकयात इस आजिज के पास आते रहते हैं। इसी को तो ये आजिज बयानात में पेश करता है। हमारा बच्चा गरीब रहा तो भी हमारा बच्चा, हमारा बच्चा अमीर रहा तो भी हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अमीर रही तो भी हमारी बच्ची, हमारी बच्ची गरीब रही तो भी हमारी बच्ची। आगे चलो,
ہماری بہو غریب رہی انہیں بھی ہماری بہو، ہماری بہو امیر رہی انہیں بھی ہماری بہو، ہمارا جوئی امیر رہا ہمارا جوئی ہے انہیں، ہمارا جوئی غریب رہا ہمارا جوئی ہے انہیں۔ یہ رشتے باہر سے اندر آ کر ہے، سب کو ایک نگاہ دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ امیر جوئی آ گیا تو مرغیاں کاٹو، غریب جوئی آ گیا صرف انڈے تل کو رکھو۔ اتنے رکھتا ہے برک بھی ہے۔ ارے ہے مولانا، ہے حال آج ایسا ہے ایسا حال۔ ہمیشہ ہمارے بچوں کو ہم یہی ڈراتے ہیں قبلہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں تو علماء کرام کو میں سلام کرتا ہوں، بچوں کے بھی تو حقوق ہے۔ اور یہ 19-20 دیکھنے کی جو عادت ہے، دیکھو گھر کے عورتوں میں بہت زیادہ۔ امیر بہو 10 بجے تک سونے کو رہی تو بھی کوئی آبجیکشن نہیں، 11 بجے اٹھ کو الٹا ساس بولتی کی ماں اتنا جلدی اٹھ گئے سو۔ تمہیں ہنستے ہمارے اعمال پر اسلام کو رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں ہنستے، میں بات بٹھانے کے لیے ذرا ہنسانے کا انداز اختیار کرتا ہوں، جو جملہ میں آپ کو ہنسانے کے لیے کہتا ہوں اس جملے میں خود میرا دل روتا ہے۔ اگر آقا امیر غریب دیکھتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کو یہ مقام ملتا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو ہریرہ کا کیا حال تھا معلوم؟ صفہ میں کون کب کیا کھانے کو لا کر رکھیں گے اس کا انتظار کرنے والوں میں ابو ہریرہ کا نمبر تھا، لیکن اللہ نے اللہ کے نبی سب کو ایک نظر سے دیکھا، کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا، ابو ہریرہ کو حدیث کا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کالا گورا اگر نبی دیکھتے، کالا گورا اگر نبی دیکھتے تو پھر ہمارے جلسوں اور مجلسوں اور ہمارے بیانات میں حضرت بلال کا نام آتا؟ کہاں ابو بکر، کہاں عمر، کہاں عثمان، کہاں حضرت علی؟ آپ کی محبت ہے، اللہ میرا ذہن کھول رہا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، غار میں ساتھ رکھنے والے حضور ابو بکر کو، سفر میں ساتھ رکھنے والے، مکے سے مدینے کو جب گئے اپنے سفر میں حضور نے ابو بکر کو ساتھ رکھا۔ عمر کو کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تم۔ عثمان سے اتنی محبت کی، اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک اٹھا کر دی، دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا، آقا نے عثمان کے درد کو دیکھ کر کہا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کا انتقال ہوتا تو میں پیچھے پیچھے وہ 40 بھی تیرے نام قربان کرتا۔ سبحان اللہ، عظمت صحابہ زندہ باد۔ عظمت صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت علی کو کیا کہا؟ علی تو مجھ سے ہے، لیکن وہی حضور مدینے سے جب مکہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ پہنچ بھی جاتے ہیں، مکے کا بارڈر پار کر کے مسجد حرام میں داخل ہونے کا جب وقت آتا ہے، نہ ابو بکر کو پکارا، نہ عمر کو پکارا، نہ عثمان کو پکارا، نہ علی کو پکارا، پکارا تو حضرت بلال کو پکارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
बिलाल लब्बैक या रसूल अल्लाह, आओ मेरे करीब आओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मस्जिद नबवी में तुम्हें मुअज्जिन, मैं इमाम, यहाँ आज पहली मर्तबा जमात की नमाज हो रही है, यहाँ भी तू मुअज्जिन रहेगा, मैं इमाम रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको एक निगाह से देखो, कमी पेशी न करो। गरीब भी हमारा, अमीर भी हमारा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाहों से नफरत करो, गुनहगारों से नहीं। सही बात। कोई मुत्तकी परहेजगार हाजी नमाजी सलाम अलैकुम हजरत बोले तो वालेकुम सलाम, खैरियत के हाजी साहब, अच्छे ही के हाजी साहब, दिक्री नहीं ना हाजी साहब, जितने जुमले बोलते नहीं उससे दो जुमले बढ़ाकर किसी गुनहगार को बोलो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत से खुदा उसकी जिंदगी बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ बात है, गुनाहों से नफरत करो, शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। जिना से नफरत करो, जानी से नहीं। झूठ से नफरत करो, झूठे से नहीं। उसे दुआ करो, उसे सुधारने की कोशिश करो, उसे बनाने की कोशिश करो, उसे अपनी दोस्ती के माहौल में लेकर आओ। अल्लाह ताला से उसकी अच्छी जिंदगी की तुम दुआ करो, अल्लाह उसी अच्छा नहीं बनाएगा, तुम्हारी नस्लों को अच्छा बनाएगा। सही बात। अगर अल्लाह ताला ये कह देते तुम नेक लोगों से ही मोहब्बत करो, गुनहगारों से मोहब्बत न करो, फिर हमारी मजलिसों में कोई गुनहगार बैठा, मजलिसों में बैठना तो दूर की बात, मुझ जैसा गुनहगार तुम्हारे बीच बैठता। सबके साथ अच्छा सुलूक आज घरों में चल रहा है। हजरत फातिमा मोहब्बत पर बात आ गई मेरी, इंशाअल्लाह ताला 1 2 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, मुझे बेंगलुरु तो जाना नहीं है, लेकिन बात आ रही है मेरे और आपके अमल की, माँ और बहनों की अमल के लिए अर्ज कर रहा हूं। माँ बाप भी अपने बच्चों के सामने पूरे इंसाफ का मामला करना, प्रॉपर्टी तकसीम करे तो भी बराबर बराबर तकसीम करना। माँ बाप मर गए तो आपस में बच्चे उठा लेते हैं तो शरीयत के मुताबिक उठा लेना। हुक्म क्या है मालूम? माँ बाप अगर जिंदा हो, अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी तकसीम कर रहे हैं, बेटी को सिंगल, बेटे को डबल नहीं, सबको बराबर देना, ये शरीयत है, शरीयत शरीयत है ये। और उन बेटा बेटी से जो रिश्ते आए नहीं उनके साथ भी अच्छा सुलूक करना, एक निगाह से देखना। अमल करेंगे अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आजकल घरों के अंदर बड़ी बेइंसाफियां हो रही हैं। अदालत में बेइंसाफी होती है तो शोर शराबा, कोर्टों में बेइंसाफी होती है तो शोर शराबा, पुलिस स्टेशनों में बेइंसाफी होती है तो शोर शराबा, दारुल खजाओं में बेइंसाफी होती है तो शोर शराबा। कभी हमने देखा हमारे घर के मसाइल पर कितना इंसाफ चल रहा है? हमारे घरों के अंदर कितना इंसाफ चल रहा है, कभी हमने गौर किया? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हम तमाम को नेक बना दे। अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने, बहुत काट रहा हूं इस उन्वान को मैं, और एक बात भी बोल डाल दो, साले भोनियों के दरमियान में भी यही इख्तलाफ है। कौन सा भोनी पैसे वाला है कि साला उसे तोलता ज्यादा? क्या अगर साहब? कौन सा भोनी गरीब है कि तोलता चुनी, कम तोलता नहीं, तोलता चुनी। नड़न भावजा के दरमियान में भी ये चाल है। नड़न भावज का तो समझते, अरे हमारे यहां भाई की बीवी को भावज बोलते, वो भावज के मुकाबले में शौहर की बहन को नड़न बोलते। यहां क्या बोलते? शौहर की बहन को सोने नहीं बोलते क्या? रिश्ते भी पहचानो। क्या बाबा? 11 से पहले खत्म करना है। 11 से पहले खत्म? मामू आगे क्या?
अरे रे 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 मामू खत्म कर दो तो मामू, इतने अच्छे बातें कहाँ होती। अभी उल्टा आको बोलना सोनू, सुबह के 11 तक करो बोल को। अच्छे बातें किसी को पसंद नहीं आते, अच्छे बातें किसी को पसंद नहीं आते। ऐसे बातें तो पार्लियामेंट में भी नहीं होते। सही बात। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, मैं पार्लियामेंट को गया तो वहां भी सास बहू का किस्सा उठाता हूं, साले भोने का किस्सा उठाता हूं। कौन सा साला पैसे वाले भोने को देख को गरीब भोने को छोड़ता कि 2 साल जेल से। कौन सी सास पैसे वाली बहू को देख को गरीब बहू को सताती कि उसे 5 साल जेल। खाली एक तरफ बात नहीं करता, 2 तरफ भी बात करता हूं कि आजकल हमारे घरों की भवा भी वैसे ही, हमारी अपनी मां को जितना इज्जत देते नहीं, अगर उतनी इज्जत को सी भी बहू अपनी सास को दे डाली तो वो बशीराबाद का घर नहीं रहेगा, जन्नत का टुकड़ा रहेगा। समझ में आई बात है? जब बात अच्छी लगती है तो ये जोश सबको भी आता सोच है। समझ में आई बात है? सुनो सुनो सुनो, जो भवा अपनी मां को जो इज्जत देते ही, मां के गुस्से को जो बर्दाश्त करते ही, दरगुजर करते ही, वैसा अगर भवा अपने घर में सास के गुस्से को, ताने को, उसके जलाल को जर्रा बर्दाश्त कर लिए नहीं, वो हैदराबाद का घर नहीं, बशीराबाद का घर नहीं, बेंगलुरु का घर नहीं, कसम अल्लाह की जन्नत के टुकड़े। बच्चों को शादियां करने से पहले ये तमाम सबक पढ़ाकर शादी करो। तेरी सास नहीं मां, तेरी मां। तेरा ससरा नहीं मां, तेरा बाप। जो बच्चे शौहर से मोहब्बत का दावा करको, शौहर के माँ बाप से लड़ती नहीं, उसकी मोहब्बत वर्जिनल नहीं। साफ बोलते आजकल के बच्चियां, मैं तुमने शादी कर लगा 250, तुम्हारे घर को शादी कर लगा रही। वो तो तुझे क्या, हमने भी वोट मालूम है सर, तुझे क्या मालूम, हमने भी वोट मालूम। तुम्हारे बाबा को देखना बोलकर हमने क्या भी जरूरी नहीं। कौन बोले देखो बोलकर, मोहब्बत रही तो देख, नहीं तो मोहब्बत का दावा करने को होगा किस्सा खत्म। जिंदगी में कभी आई लव यू नहीं बोलना। कितने दिन खिदमत कर लेना पड़ता, एक 5 साल, एक 6 साल। तुम्हें खिदमत कर कर देखो, वहां से मोहब्बत नहीं आई तो पूछो। खिदमत का सदका, खिदमत का बदला मोहब्बत। ये वाकयात भी मेरे पास ही। आजकल हमारे घर में ही से बच्चियां, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ बाबा, एक लतीफा याद आ रहा है, सुनो। लतीफा कहते समझते? अरे समझते नहीं समझते? लतीफा कहते जोक्स। समझ में आई बात? माना लतीफ साहब की जरूर समझेंगे तुम्हें। लतीफा कहते क्या? जोक्स। एक शौहर ऑफिस से अपनी बीवी को फोन कर करते, एक शौहर क्या कर, ऑफिस से अपनी बीवी को फोन कर करते, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीब बोलो, आजकल तो मियां बीवी बात करने का अंदाज भी बदल गया हजरत। समझ में आई बात है? शौहर बीवी को अजीब पुकारने के बजाय आजकल क्या पुकारता मालूम? क्या ऑफिस साहब आपको बोलो बेबी, चल रहा है बड़े बड़े शहरों में, बड़े अजीब मुल्कों में। बोलो जी। अजी अब्बा का भी अम्मी का फोन आया, आ रही कहते, साथ में भैया भाभी भी आ रही कहते। कौन बोलिया? शौहर बोलिया। किसे बोलिया? बीवी को बोलिया। शौहर बोली, अरे क्या बोले तुम्हें? तो बोले आओ 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 आओ, खुशी की बात, आओ। बोलिया क्या हाजी, तबीयत ही सही नहीं दिखती। ये घर की औरत है ना, ऑपोजिट के रिश्ते वाले आए तो उससे पहले इनको बीमारियां आ जाती हैं।
कमर में दर्द, तुम ना फोन में बात कर रही सभी नहीं, सोले को उठने नहीं हो रहा है। शौहर परेशान, उठा तो जबरदस्त वॉकिंग करे सका, घर में फिर लग थी। अब्बा अम्मी भैया भाभी आ रही, वो तो कमर में दर्द बोलते। अब मैं क्या करूं जी, आ जाओ बोलकर बोल डालिया। क्या भी करना तो नहीं, अब क्या भी नहीं होता मुझे, आओ को तो नहीं बोल सकते। तुम एक काम करो जी, कल की दाल है फ्रिज में गर्म कर डालता हूं, चावल उबाल डालता हूं, आते वक्त तला हुआ गोश्त 100-200 रुपए का ले लेकर आ जाओ। नको ऐसा करो, नको जी इज्जत चल जाती। नहीं हो रहा मंजे, जिद करके उन्हें भी फोन रख डाली, इन्हें भी फोन रख डालिया। जर्रा वक्त के बाद दरवाजा खिटखिटाने का आवाज आया, टक 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 टक। अब इन्हें बेडरूम से आवाज सुनकर वहां गए, तक बीच का जो सफर था ना, पूरे सफर में गालियां दे लगे, बेवासियां घरा में बैठते नहीं, आ जाते ही। कितने बच्चे ही उनके घर को जाकर मरना नहीं, हमारे घर को चाहे कितना कौन था कि पूरा खाली कर डाल को। दरवाजे के पास पहुंच को, कौन? बाहर से जवाब आया, खोल बेटी मैं आया। सो देखे तो ये बच्ची का बवा को है। परेशान होगी, लो अब्बा आ गई, जल्दी दरवाजा करिए। अबू तुम्हें ऐसे क्या? अम्मी आओ, अम्मी भैया आओ, भैया आओ, भाभी आओ 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 बोल को बुला को, सोफे में बिठा गिठा को पानी गिनी दे डाल को। शौहर को फोन करी, क्या भी बोले सो तुम्हें? अब्बा आ रहे, अब्बी आई। शौहर भी तुम्हारे सका बा अखलाक था, बोला तुम्हारे अब्बा क्या, मेरे अब्बा क्या? तू समझ में गलती करी तो मेरा क्या कसूर है? तू मेरे माँ बाप को माँ बाप तो नहीं मानी, मैं तो तेरे माँ बाप को माँ बाप माने। खुश हो को बोले अब्बा आ रही, अम्मी आ रही बोल को। अल्लाह अल्लाह पूरा खोल को बोलना नहीं तुम्हें। अब क्या करना जी, क्या करना, क्या करना? फ्रिज की दाल, कुकर का चावल, 200 रुपए का गोश्त। हमारे अपने आए तो आसमान के तारे भी ससुराल के घर के आ गए, नहीं सो दर्दा। ऐसा घरा जुड़ते नहीं। सच कहता हूं मैं, वक्त का तकाजा है, कानून तोड़ना हमारा धर्म नहीं सिखाता। मैं तमाम बातों को जहन में रखा हूं, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला आऊं, बात याद रही तो आपके सामने अर्ज करूंगा। इत्तेहाद को घर के अंदर पहले पैदा करो, एक दूसरे को माफ करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उल्टा तुम्हें आगे बढ़कर बात करो, मैं भी मुस्तफा अगर लड़ लिए, मैं हक पर, मुस्तफा नाहक पर रहा। प्यारे आका फरमाते हैं, तुम्हें खुद अगर जाकर मुस्तफा से बात कर लेते हैं, अल्लाह इतना खुश होते हैं, जन्नत के बीचों बीच अल्लाह बंदे की पसंद का घर नहीं बनाते, अपनी पसंद का घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सच में ऐसे वक्त में क्या पुलिस बोलना 11 बजे तक खत्म करो बोलकर, ऐसा उन्वान जुड़िया है, एक देर तक तो चल सकता था। लेकिन सर्दी भी, असल में उनको सर्दी लग रही है, सो तुम ना खत्म करने की बात कर रही हो लगा। खैर नको, कानून कानून होता है, उनको बोलकर भेजे। इतना अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह ताला इनकलाब की इब्तिदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह समझ में आई बात है। नमाज की पाबंदी करो, कुफरिया कलिमात से, शिरकिया कलिमात से बचो, कुरान की तिलावत करते रहो, बच्चों की तरबियत और तालीम पर खास तवज्जो दो, एक दूसरे को माफ करो, घर का माहौल बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। बोलो इंशाअल्लाह ताला। मिसाली बड़े बन जाओ, मिसाली नौजवान बन जाओ, मिसाली माए बन जाओ, मिसाली बाप बन जाओ, मिसाली बच्चे बन जाओ। अब हालात इतने नाजुक हैं, हमें नहीं बदले, अल्लाह हालात नहीं बदलते। नाजुक ही हालात बहुत नाजुक है। दुश्मन भी समझता है,
हमें भी समझते हैं कि हालात क्या है, नाजुक हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हमें बदल गए, दूसरों के पास उनकी ताकत होगी, हमारे पास हमारा अल्लाह होगा इंशाअल्लाह। हमें बदल गए तो हमारे पास कौन होगा? हमारा अल्लाह होगा। हमारे बदलने की सख्त जरूरत है। बड़ी फिक्रों के साथ माशाअल्लाह सुना कि मैं काफी दिन हो गए जलसा होकर, बीच में कुछ हालात भी आ गए। काफी दिनों के बाद जो जलसा हुआ पूरे अच्छे इंतजामात के साथ हुआ, लेकिन जर्रा मई जैसा होना था वैसा नहीं हुआ। उसी पर बात करते करते यहाँ आया। आइंदा लाए तो सबसे पहले मई कैसा है पूछ को आऊंगा हजरत। मई अच्छा रहना कभी भी, समझ में आई बात है, ताकि बात करने वालों के जहन में दिमाग में कोई बोझ न पड़े। हालात के तहत में अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। अल्लाह हम तमाम को 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुज़र फरमा, जाने अनजाने सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, नेक अच्छी सारी जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह आज के हमारी जलसे को तू बेहद कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जो भी कहा गया सुना गया सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन इस पूरे जलसे में जिस जो भी हिस्सा लगा है सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह जलसे की बरकत से जो भी बीमार है सबको सेहत अता फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात को बुलंद फरमा, कोताहियों को माफ़ फरमा, अजर अजीम और जजील अता फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमा। अल्लाह माँ और बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं, उनका भी एक एक मसला हल फरमा, उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उनके उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में सुकून राहत चैन अता फरमा, मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतरीन बना। हमारी दुआ को तो अपने फजल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुसाफा ना करो। इंशाअल्लाह मालिक करने दुनिया की बड़ी परीक्षा कांग्रेस में बरकत हटा दूंगा। मौका का नहीं लगता इस वक्त बरकत हटा दूंगा। एक मुसाफा करने